everyone. Today I want to explain the next topic, that is crop protection management. As you know that field crops are infested with variety of pests. You know what are pests? Actually a pest, P-E-S-T, pest is any destructive organism which causes great economic loss by destroying crop plants or products obtained from them. And you know that the pest of crops plant, they include the weeds, then insects, mites, nematodes, rodents, fungi, bacteria and viruses. So these are the different types of the pest. Actually जो field crops है are infested by large number of insects and insect pests and diseases, and if these pests are not controlled at appropriate time, they can damage the crop for you can say to the extent of 50 to 70%, यानी 50 से लेके 70% तक क्रॉप हमारी डैमेज कर सकते हैं ये पेस्ट. ठीक है, तो पेस्ट आर द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच विल हार्म और विच विल डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप, ये बोल सकते हो आप. There are various methods by which insects and disease can be controlled, and one of the most common and effective method is use of pesticides and biocides, which include insecticides. आपको पता है insecticides are for killing the insects. Then weedicides are the chemicals which are used to kill the weeds. Okay. After that fungicides are there. These are used to kill the fungi or fungi, and those chemicals, these chemicals are poisonous and used to kill the pest. Example, weeds, insects, mites, rodents, fungi. So these are known as pesticides. Means pesticides are such chemicals which are used to kill the pest. ठीक है. Now these chemicals हैं, ये जो pesticides हैं, are sprayed on the crop plants or used for treating seeds and soils. However, one should try to avoid the use of these toxic chemicals. Toxic chemical कौन से हैं? ये pesticides हैं, as they cause environmental pollution. ठीक है, इनके अंदर पॉइजन होते हैं तो एनवायरनमेंट को भी ये पॉल्यूट करेंगे. ओके, सो ये यू शुड अवेयर अबाउट दैट कि पेस्ट क्या है. ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स. ओके, उसको पेस्ट बोलते हैं. एंड पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस or are the chemicals which are used to kill the pest. Okay. So pesticides वो chemicals हैं. Weedicides are those chemicals which are used to kill the weeds. और weeds क्या होते हैं? Weeds are the unwanted plants. Unwanted या undesirable plants हैं जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ, मेन क्रॉप के साथ. सो अनवांटेड प्लांट्स या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स बोल सकते हो आप, जैसे क्रायोसैंथेमम है. ओके, उसके बाद कॉन्वोवोल्यूलस है. वीडीसाइड्स क्या है? वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स और केमिकल सब्सटेंसेस which are used to kill the weeds, which are used to destroy the weeds, which are used to destroy the weeds. Okay, या फिर आप बोल सकते हो these weedicides are the chemicals which are used to kill the weeds. Okay, so पेस्टिसाइड्स हो गई, वीडीसाइड्स है, फंजीसाइड्स और फंगीसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द फंगी.
So if we want to control the pest, fungus, then weeds, then we should use these pesticides, fungicides and weedicides. But you know that in fact it would be far better if we adopt the preventive measures rather than allowing crop to be infested by pest and then control them by pesticides. So some of the preventive measures of pest will be there. What are these? Actually क्या preventive measures है? First तो हम ले सकते हैं कि use of resistant variety of plants. Resistant variety use करेंगे तो हमारी crop already resistance रहेगी, उस disease से दूर रहेगी. Okay. Then selection of optimum time of sowing the crops. Then third है crop rotation and multiple cropping should be there. Okay. Then clean cultivation should we can use. Okay. After that summer plowing also. For example, humid and warm conditions is regarded as more favorable for infestation of insect, pest and disease. ह्यूमिड कंडीशंस है, वार्म कंडीशंस है, तो वहाँ ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पेस्ट एक्टिव होंगे एंड दे कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप इजीली. तो हम लोगों को ये करना चाहिए. दैट्स व्हाई जो खरीफ क्रॉप है जैसे मेज़ है, मिलेट है, आर मोर प्रोन टू दीज पेस्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स है, वीट है, ग्राम है, शुगर केन है, पी है, तो ये ज़्यादा मोर प्रोन होंगी. ओके. So first है weed control. How we can control the weed? Weed तो I told you कि weeds are unwanted plants in the cultivated fields. In other ways क्या बोल सकते हो आप? Weeds क्या हैं? Weeds undesirable plants है. They can be grown by themselves. We cannot grow them. Okay. So in comparison of cultivated crops बोल सकते हैं, the seeds of weeds germinate easily their seedlings and they grow faster. Okay. They flower earlier also as compared to our main crop. So if the weeds are there in our crop along with our main crop, then they can just compete with the sunlight, they can compete with the food and they can compete with the space also. So we have to remove these. अभी we should remove these. ठीक है. हो सकता है ये हाई यील्ड नहीं हो, रिटर्न्स नहीं मिले हमें, तो वीड्स है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. लाइक जैसे सोरगम प्लांट कल्टिवेटेड किया क्रॉप फील्ड में, तो सोरगम जवार है, जवार एक्ट एज एन बोलते हैं ना वीड का काम करता है. तो वीड का एग्जाम्पल, वीड्स का एग्जाम्पल जो है सोरगम भी हो सकता है, सोरगम. ठीक है, जिसको हम जवार बोलते हैं. ओके. सो दैट इज ऑल्सो जवार है, वो वीड है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ वीड्स आर देयर. कौन कौन से टाइप्स है? एक्चुअली इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स इज मोर ड्यूरिंग द खरीफ सीजन दैन इन द रबी सीजन. ठीक है. अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा कब होगा, मैंने बताया आपको कि खरीफ सीज़न में होगा, रबी सीज़न में नहीं होगा, क्योंकि रबी विंटर में ग्रो करते हैं हम और ख़रीफ है वो समर क्रॉप होती है. तो समर में ज़्यादातर समर या वार्म कंडीशंस में जो इन्फेस्ट है या पेस्ट है वो ज़्यादा होंगे. ओके. तो एक्चुअली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी है ना, बाहर से दिखाई कैसा देता है प्लांट, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है वीड्स को नैरो लीफ वीड्स में and broad leaf weeds. Let me discuss the different types of weeds. Okay, so weeds, you know that unwanted plants that can grow without our wish, they can grow with their own. ठीक है. तो ये weeds है, ये दो टाइप की होगी. एक तो नैरो लीफ weeds होंगी जिनकी लीफ नैरो होती है, एंड दूसरी वाइड ब्रॉड या वाइड बोल सकते हो, ब्रॉड लीफ weeds होंगी. ठीक है. सो नैरो वीड्स मोस्ट प्रोबेबली मोनोकॉट्स की होती है. तो मोनोकॉट जो होंगे, मोनोकॉट वीड्स हैं, ये मेनली होंगे ये नैरो लीफ वाले. ठीक है. और डाइकोट वीड्स होंगे ये ब्रॉड लीफ के होंगे. अब इनमें भी दो सीजन्स हो गए, खरीफ सीजन वीड्स होंगी एंड रबी सीजन वीड्स होगी. खरीफ में है ये साइप्रस रोडेंटस है. ठीक है. साइप्रस रोडेंटस को हम मेनली मोथ भी बोलते हैं, मोथा मोथ जो भी है. ओके. रबी सीजन वीड्स में वाइल्ड ओट हो गई,
जिसको आप जंगल में उगती है अपने आप, जंगली वाइल्ड ओट बोलते हैं, जंगली जई, ओके, जई नाम से जाने जाते हैं इसको, जंगली जई बोलते हैं, अपने आप ग्रो कर जाती है। ओके, देन डाइकॉट, ये जो ब्रॉड लीफ होगी, जिनकी लीफ बड़ी बड़ी होंगी, चौड़ी चौड़ी होंगी, देख के वाइड होंगी, दे डाइकॉट लीव्स वीड्स होंगी। और ये खरीफ सीजन वीड्स और रवि सीजन वीड्स दो टाइप्स की होंगी, जिसमें अमरंथस वर्डीज है, जिसको आप चौलाई बोलते हो, ठीक है। तो ये है, और दूसरी है चिनोपोडियम एल्बम, जो बथुआ हम लोग खाने के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, हम बथुआ के पराठे वगैरह खाते हैं। तो दीज आर द वीड्स, अपने आप ग्रो कर जाती है, और लेकिन हमें इनको निकालना ज़रूरी है। फर्दर ड्यूरिंग जो खरीफ सीज़न है, दैट शॉर्ट ड्यूरेशन विल बी टेकिंग प्लेस, मेज़ है, मिलेट है, शॉर्ट सेचुरेटेड है जैसे ग्राउंड नट है, स्लो ग्रोइंग है जैसे पिजन पी है, क्रॉप्स आर मोर ससेप्टेबल टू वीड्स, ठीक है, ये ज़्यादातर ससेप्ट हो जाते हैं, वीड्स इनमें जल्दी लगती है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन दीज क्रॉप्स अबाउट 35 to 45 डेज होता है। अब व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द वीड? सो मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल लिख सकते हो आप और समझ सकते हो, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। तो डिफरेंट मेथड्स हैं वीड कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स है ये वीड कंट्रोल करने के लिए? फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेथड और बाय द डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से हैं? तो मैकेनिकल मेथड में जैसे अपरूटिंग है, या वीडिंग विद ट्रॉल है, या खुरपी के साथ में आप उखाड़ रहे हो, ठीक है, या हॉरो है जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंट होता है जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, या हैंड रोइंग है, स्क्रैपिंग बोलते हैं जिसको, देन इंटरकल्चर है, प्लोइंग है, बर्निंग है, फ्लडिंग है। सो ये तो मैकेनिकल मेथड है, मींस हम लोग अपने हाथ से या फिर मशीन से निकाल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो फर्स्ट तो मैकेनिकल मेथड हो गया, ओके। अब मैकेनिकल मेथड में आप सुन लीजिए कौन कौन से मेथड्स बताए मैंने वापस से, ठीक है। नाउ जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, इसको बोलते हैं हम वीडिंग, वीडिंग बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड में रिमूविंग होगी, रिमूविंग ऑफ वीड्स, रिमूविंग ऑफ वीड्स को बोलते हैं हम वीडिंग। Weeding is the process in which process of removing weeds from our main field या crop field, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। So we can use that remove trawl method, or we can use the khurpi by which we can remove these weeds. Weeding can be done by the methods like weeds may be pulled out with the hand also, हाथ से खींच रहे हो आप, या plowing help कर रहा है, या फिर यू कैन यूज़ द मैच्योरिटी पार्ट, खुरपी या इस तरह से यूज़ करें। बिफोर सोइंग और प्लांटेशन है, वीड्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग ए बिग कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, हॉरो बोलते हैं जिसको। हॉरो है कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप बिकॉज इट विल ऑल्सो अपरूट द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो वीड्स विच अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर रिमूव्ड मैन्युअली बाय यूजिंग ए खुरपी या ट्रॉल यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। सेकेंड हम ले सकते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड मेथड आप ले सकते हैं, दैट इज कल्चरल मेथड, ठीक है, कल्चरल मेथड। फर्स्ट तो मैकेनिकल मेथड यूज़ किया, सेकेंड हमने कल्चरल मेथड यूज़ किया, ओके। कल्चरल मेथड में इट इंक्लूड्स अ मेथड लाइक प्रॉपर बेड प्रिपरेशन है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स है, इंटरक्रॉपिंग है, एंड क्रॉप रोटेशन है, ये सारे के सारे हमारे कल्चरल मेथड्स में आता है। और थर्ड हम लेंगे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में केमिकल वीड्स आर देयर, केमिकल वीड किलर्स होते हैं जिनको हम हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स बोलते हैं। दे कैन बी स्प्रेड ऑन द वीड्स टू डिस्ट्रॉय देम, दिस इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, क्योंकि केमिकल से हमने कंट्रोल किया है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स है वीडीसाइड्स के, जैसे आपने सुने होंगे 2,4-D, जिसका नाम है पूरा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा है एट्राजीन, देन फ्लूक्लोरैलीन, ओके, एंड आइसोप्रोट्यूरोन। सो
तो ये केमिकल्स हैं जिनसे हम वीडिंग करते हैं, इनको वीडीसाइड्स बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द वीडीसाइड्स, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स. केवल वीड्स को ही किल करेंगे, दे कैन नॉट हार्म ऑन आवर मेन क्रॉप. ये है, ठीक है. तो सेकेंड कल्चरल मेथड ले लिया एंड थर्ड हमने लिया वो केमिकल मेथड. सो थर्ड इज केमिकल मेथड. ठीक है, केमिकल मेथड में हमने वीडीसाइड्स यूज़ करी हैं. वीडीसाइड्स मैंने बताया 2,4-D, 2,4-D है. ठीक है, 2,4-D बोलते हैं इसको. तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. ओके, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इस केमिकल का पूरा नाम है. ये एट्राजीन ले सकते हैं आप एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल हो गया 2,4-D, देन एट्राजीन. ओके, देन और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप आइसोप्रोट्यूरोन. ETC छोड़ दें. ओके, सो दीज आर द वीडीसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स. ठीक है, नाउ फोर्थ मेथड ले लेते हैं हम. क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल कंट्रोल. ठीक है, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे हम? एक्चुअली बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स इन्वॉल्व द deliberate use of insects or some other organism which consume and specifically destroy the weed plants. ठीक है, यानी हम इसमें कुछ बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे जो कि बायोलॉजिकल मेथड होगा. मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स यूज़ करेंगे जो स्पेसिफिकली वीड्स को ही कंज्यूम करें या वीड्स को ख़त्म कर दें. The best Indian example of biological control is eradication of prickly pear cactus जो Aponcia है by using the cochineal insect in Maharashtra and Tamil Nadu. Generally, a combination of one or more of these weeds control methods are employed to get good results. Okay, aquatic weeds are controlled by the fish, grass carp मेनली ये हैं. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करेंगे. यानी ऐसे इंसेक्ट्स लेंगे या जो भी छोड़ेंगे जो बायो से रिलेटेड होंगे. मीन्स दे आर इंसेक्ट्स हो सकते हैं या सम अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं विच कैन फीड द वीड्स या विच कैन डिस्ट्रॉय आवर वीड्स. दे कैन नॉट हार्म आवर क्रॉप्स. तो ये मेन मेथड्स यूज़ करेंगे. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स. क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बता सकते हैं आप? क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो इफ़ेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, क्रॉप प्लांट्स में इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सो लेट अस कंपेयर दीज इफ़ेक्ट्स. लेट अस डिस्कस दीज इफ़ेक्ट्स. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट है कि जो द ग्रोथ ऑफ वीड्स है इन द फील्ड इज़ हार्मफुल बिकॉज दे कम्पीट विद द क्रॉप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन वाटर, स्पेस एंड लाइट. ठीक है, उनके साथ कम्पीट करेंगे. वाटर है तो स्पेस है तो न्यूट्रिएंट है तो वीड्स आर जनरली मोर एफिशिएंट दैन crop plants. They grow quickly, absorb more nutrients and water and deprive the crop plants of essential inputs. As a result, the growth of the crop is reduced. तो सबसे बड़ा इफेक्ट है जब क्रॉप की ग्रोथ ही रिड्यूस हो गई, हमारे क्रॉप की ग्रोथ. तो ये फर्स्ट इफेक्ट है कि हमारी जो क्रॉप है वो रिड्यूस हो जाएगी, ग्रोथ ही रिड्यूस हो जाएगी. वाई?
बिकॉज ये जो है compete करेंगे हमारे मेन क्रॉप के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है कि मेथड्स तो वी हैव डन ना, नाउ इफेक्ट्स वी आर डिस्कसिंग। तो सेकेंड जो है कि वीड्स है स्प्रेड क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज बाय एक्टिंग एज अल्टरनेट होस्ट टू इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है कि जो सम वीड्स है मे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड विच मेनली इंटरफेयर विद ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, और ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स गेट मिक्सड विद द क्रॉप प्रोड्यूस टू डाउनग्रेड इन क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है, कुछ वीड्स उसके कटिंग के साथ हार्वेस्टिंग के साथ आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेंगे हम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। सो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल क्या आता है? एक्चुअली मेनी इंसेक्ट्स आर serious pest of plants and they attack all stages, parts and products of the plants. Got it? Insects attack the crop plants in 3 ways. What are these 3 ways? एक तो है sucking insect, ठीक है, suck करेगा। सेकेंड इंटरनल फीडिंग हो सकता है एंड फर्स्ट है थर्ड है च्यूइंग, च्यू करेगा, तो च्यूइंग इंसेक्ट हो सकता है। च्यूइंग इंसेक्ट हो गया तो मतलब दैट द च्यूइंग इंसेक्ट डिस्ट्रॉय ऑल सॉर्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड दे कट रूट, स्टेम, लीफ और क्रॉप प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ देयर च्यूइंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, च्यू करेंगे वो माउथ पार्ट से, उसको च्यू करके पूरा टीयर ऑफ कर देंगे, लीव्स को टोटली डेलिकेट ब्रांचेस को टीयर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो दे कैन च्यू देम, स्वेलो देम, लाइक लोकेस्ट है, ग्रास होपर्स है, पूरा की पूरा चबा जाते हैं, ग्रब्स है, कैटरपिलर्स हैं। ये सकिंग में सक करते हैं, ये सकिंग इंसेक्ट्स हैं, वो सक करेंगे सेल सेप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, से करेंगे। दे इंक्लूड वेरियस कॉमन पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट सच एज एफिड्स हैं, एफिड्स जिसको बोलते हैं, देन लीफ हॉप्स है, पायरिला है, प्लांट बग्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये हैं, कॉटन बग हैं, तो ये सक करेंगे सेल सेप को एंड दे पॉजेस पर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स ऑल्सो। जो सकिंग इंसेक्ट्स है सकिंग पार्ट होगा उसका। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट्स फाइंड पंक्चर्स इन द स्किन ऑफ द प्लांट्स विद देयर निडल लाइक hollow break beaks हैं एंड सक द सैप। ठीक है, सैप को सक कर लेंगे। थर्ड जो है वो इंटरनल फीडर्स हैं। ये इंटरनल फीडर्स क्या होते हैं? इंटरनल फीडर्स लाइव इनसाइड द प्लांट पार्ट्स। ये कहाँ रहते हैं? प्लांट पार्ट्स के अंदर लीव करेंगे। दे आर कॉल्ड बोरर्स, बोरर्स बोलते हैं इनको, व्हेन दे लाइव इन ट्विग्स और रूट्स और शुगर केन बोरर्स। ठीक है, अब ये पोड बोरर्स हो सकते हैं, मेक होल्स इन द पोड ऑफ द चिकपी एंड फीड ऑन द डेवलपिंग ग्रेन, ये भी बोल सकते हैं हम। दे आर कॉल्ड वीविल्स, भी वीविल्स हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्माइट्स है, वीविल्स हैं, ये सब के सब अंदर रहेंगे और उन्हीं को खाएंगे। डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट है कैन बी कंट्रोल बाय द डिफरेंट मेथड्स। कौन से है? एक तो रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है, ये कंट्रोल होगा बाय मिक्सिंग द इंसेक्टिसाइड इन सॉइल। सॉइल में ही डाल दोगे आप इंसेक्टिसाइड तो कंट्रोल हो जाएगा। स्टेम एंड लीफ कटिंग बोरर्स टाइप इंसेक्ट्स है, ये कंट्रोल होंगे। स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स को, जैसे मालाथियन इंसेक्टिसाइड है, थियोडान है, ये ऑल सेप सकिंग इंसेक्ट्स है कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स। स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड्स को और उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब कोई इंसेक्टिसाइड है वो एंटर कर जाएगी प्लांट में, किसके थ्रू? रूट के थ्रू जाएगी और टिश्यूज़ में पास हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हार्मलेसली पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट एंड पॉइजन इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, इसको एफिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल देख लिया हमने, कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है इंसेक्ट की, और ये 3 टाइप के इंसेक्ट होंगे। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है ये सीरियस होंगे और मेनली ये जो क्रॉप प्लांट्स है मतलब 3 तरीके से ये अटैक करेंगे।
इंसेक्ट 3 तरीके से अटैक करेंगे। एक तो फर्स्ट च्यूइंग इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट च्यू करेंगे। सेकंड में सकिंग करेंगे, सकिंग इंसेक्ट्स होंगे, ये सक करके करेंगे, प्लांट सैप को सक कर लेंगे। और जो थर्ड है ये इंटरनल फीडर्स होंगे, या प्लांट के अंदर रहेंगे और उनको फीड करेंगे, बॉडी में प्लांट के अंदर चले जाएंगे। तो ये इंटरनल फीडर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। सकिंग लिख लेते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स लिख लेते हैं। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड। ये थर्ड 3 तरीके से इंसेक्ट्स फीड कर सकते हैं, ठीक है। च्यू करके करेंगे, च्यूइंग इंसेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सो लेट अस डिस्कस द डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो। क्या होगा, एक्चुअली हमारा एनवायरनमेंट कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस पता है आपको, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोपोगेशन, तो क्या होता है, दे स्प्रेड एंड इन्फेक्ट द क्रॉप प्लांट्स कॉजिंग डिजीज, ठीक है। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या कर देते हैं, डिजीज़ कर देंगे प्लांट्स में। डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ अकरेंस क्रॉप डिजीज, देयर आर मीन्स दे हैव 4 टाइप्स। कैसे है, एक तो सीड बोर्न डिजीज़ है, ओके। सीड बोर्न डिजीज़ में ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी थ्रू सीड्स, सीड्स के थ्रू ही डिजीज़ होगी, क्योंकि सीड बोर्न डिजीज़ है, ठीक है। जैसे कि अर्गॉट ऑफ बाजरा है, या पर्ल मिलेट है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, ये सारी सीड बोर्न डिजीज़ है। दूसरी है सॉयल बोर्न डिजीज़, नाम से पता चल रहा है, दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द सॉयल। सॉयल बोर्न डिजीज़ है, सॉयल से स्प्रेड होंगी एंड मोस्टली इफेक्ट रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। स्मट ऑफ बाजरा बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर एयर बोर्न डिजीज़ है, नाम से पता चल रहा है, दीज क्रॉप डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय द एयर। एयर से ट्रांसमिट होंगी तो एयर बोर्न डिजीज़ है। जैसे रस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है, ब्लास्ट ऑफ राइस है, ये एयर बोर्न है, ओके। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज़, नाम से पता चल रहा है वाटर बॉर्न डिजीज़ में वाटर से बॉर्न होगी। पैथोजेंस ऑफ दीज क्रॉप डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय द वाटर, वाटर से ट्रांसमिट होगा वाटर बॉर्न डिजीज़ में, लाइक बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है। अब कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्चुअली जो सीड बॉर्न एंड सॉयल बॉर्न डिजीज़ है कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द सीड और सॉयल। Airborne disease are controlled by spraying fungicide solution on the infested parts, and disease of major crops and their control measures may be different. जैसे कि मान लो एक डिजीज़ है, राइस की ब्लास्ट है, तो पैथोजन कौन हो गया इसका, फंगस हो गया, ठीक है। सिम्टम्स कैसे होंगे इसमें, ब्राउन बॉट शेप लेसन्स हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, मार्जिन्स ऑफ लीफ में नज़र आएंगे, ठीक है। तो ट्रीट कैसे करेंगे, इसमें थीरम ले लेंगे या स्प्रे कर देंगे उसको, उससे ट्रीट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिजीज़ है वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कि कैसे वो फैल रही है, कैसे वो स्प्रेड हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन जस्ट ट्रीट इट, ओके। नाउ स्टोरेज ऑफ ग्रेन, नेक्स्ट ले लेते हैं हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ठीक है। तो डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स लिख सकते हैं ना आप, डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप डिजीज़ 4 मेन टाइप्स की होती है, ठीक है, लिख सकते हो आप। क्रॉप डिजीज़ेस आर, फर्स्ट कौन सी बताई मैंने आपको, जो सीड से स्टार्ट हो रही है, सीड बोर्न डिजीजेस, सीड बोर्न डिजीजेस। सेकेंड मैंने बोली सॉइल बोर्न डिजीजेस, ये सॉइल से होगी, फिर एयर से होगी, ठीक है, एयर बोर्न डिजीजेस। और नेक्स्ट है वो वाटर से होगी, वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिजीज होंगी। तो
आफ्टर दैट वी कैन टेक द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। लास्ट तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स लेंगे। मोस्ट क्रॉप जो हार्वेस्ट हो गया, एक साल में एक बार हार्वेस्ट होती है, उसके बाद स्टोरेज करते हैं, उनको कहीं रखते हैं। तो जो प्लेंटी और सिलेक्टिव टाइम चाहिए आपको, अवेलेबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस चाहिए उसके लिए। तो फॉर गेटिंग सीजनल फूड्स रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, तो दे आर स्टोर्ड इन द सेफ स्टोरेज चाहिए। गॉट इट? क्योंकि एक साल में एक बार आ रहा है, आप ढंग से नहीं रखोगे तो इट विल बिकम द स्पॉयल, और हम पूरे साल क्या यूज़ करेंगे। तो उस सीरियल को हमने स्टोर करना है, ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर करना है। तो 3 लेवल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे प्रोड्यूसर लेवल हो गया, फार्मर लेवल बोलते हैं इसको, रूरल स्टोरेज होता है इसमें। सेकेंड जो हो गया वो ट्रेडर्स लेवल हो गया, ये मेनली गनी बैग्स में रखे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो FCI है, वो होगा, मेन ये स्टोर करेंगे फूड को, ठीक है। तो 3 टाइप से 3 लेवल्स पर ये फूड स्टोर होता है। ओके, सो प्लीज़ रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स विच वी हैव डन टुडे, and if you have any problem then you can ask in next video, or I can discuss it in the next video. So with this I want to say that thank you and have a nice day.